हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट इनलाइन फंक्शन इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में इनलाइन फंक्शन क्या होता है। सो इनलाइन फंक्शन जो होता है वो सिमिलर टू राइटिंग द फंक्शंस इन सी प्लस प्लस एक्सेप्ट इनलाइन कीवर्ड इज यूज्ड। हम लोग इनलाइन फंक्शन को यूज करते हैं कीवर्ड इनलाइन से। द इनलाइन फंक्शन आर C++ enhancement feature to increase the execution time of a program। ये आपका कंपाइलर के साथ कंपाइल टाइम में वो रिप्लेस कर देता है कोड को और उसके बाद कंपाइलेशन में उसका एग्जीक्यूशन फास्ट होता है। The function can be instructed to compiler to make them inline so that compiler can replace those function definition whenever those are being called. So main advantage of inline function is that they save on the overheads of a function call as the function is not invoked, rather the code is replaced the program। जो हम कोड लिखे होते हैं वो रिप्लेस हो जाता है और इससे फास्ट एग्जीक्यूशन होता है। The compiler replaces the definition of inline function at compile time instead of referring function definition at runtime। If the function is big, then the compiler can ignore the inline request and treat the function as normal function। मतलब कि ये हमेशा स्मॉल प्रोग्राम के साथ यूज होता है। ये आपका लूपिंग फंक्शन हो, अगर फंक्शन में लूपिंग डिफाइन कर रहे हो या फंक्शन में रिकर्सन यूज हुआ हो, तो दैट टाइम इनलाइन फंक्शंस आर नॉट बीइंग यूज। ये एक सिंटेक्स है हाउ टू राइट द फंक्शंस यूजिंग इनलाइन। तो इनलाइन फंक्शन यूज करने के लिए कीवर्ड इनलाइन यूज करते हैं हम लोग। इनलाइन फॉलोड बाय द रिटर्न टाइप, देन द नेम ऑफ द फंक्शन और उसके बाद इंट ए इंट बी, दो हमने आर्गुमेंट लिया है। ए और बी मेरा वेरिएबल नेम है जिसका डेटा टाइप इंट है। विद इन कर्ली ब्रेसेस वी हैव डिफाइंड द फंक्शन बॉडी। इसमें लिखा है रिटर्न ए प्लस बी, बिकॉज इंटीजर टाइप डेटा है तो ऑलवेज इंटीजर टाइप डेटा रिटर्न सम वैल्यू, दैट्स व्हाई we write the return a plus b। Why to use? In many places we create the function for small work which contains simple and less number of execution instruction। Imagine their calling overhead each time they are being called by caller। So ये नॉर्मल फंक्शन के साथ हम लोग यूज करते हैं। जब फंक्शन छोटा हो तो उसको हम लोग उसके कोड को कंपाइलर कॉपी करके एग्जीक्यूट करता है, इससे हमारा कंपाइलेशन टाइम भी सेव होता है। C++ inline function provides an alternative। With inline keyword, the compiler replaces the function call statement with the function code itself, then compiles the entire code। ये function call statement के साथ use होता है। Pros, what are the pros with the inline function? It speed up program by avoiding function calling overhead। ये फंक्शन को एक स्पीड प्रदान करता है। It saves overhead variable push pop on the stack when function calls happen। It saves overhead to return call from a function। It increases locality of reference by utilizing instruction cat। By marking it inline, you can put a function definition in a header file। It can be included in multiple compilation unit without the linker compiling।
तो इसको आप नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लीजिएगा। और क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या नहीं होता है इसको करने से। इट इंक्रीजेज द एग्जीक्यूटेबल साइज ड्यू टू कोड एक्सपेंशन। When it is used in header, it makes your header file larger with information with user don't care. Sometimes it is not useful, for example, in embedded system where large executable size is not preferred at all due to memory constraint. इसको ये भी आपके एग्जाम्स में आता है, व्हाट आर द बेनिफिट एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ, उसी को हम लोग प्रोज एंड कॉन्स में लिखे हैं, इसको लिखना चाहिएगा तो लिख लीजिएगा। नाउ व्हेन टू यूज, हम लोग इनलाइन फंक्शन कब यूज करते हैं। द फंक्शन कैन बी मेड एज इनलाइन एज पर प्रोग्रामर्स नीड, जैसा प्रोग्रामर को आवश्यकता होती है उसके हिसाब से हम लोग इनलाइन फंक्शन यूज करते हैं। We can use inline function when performance is needed. We use inline function over macros. Macros क्या है वो लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। Prefer to use inline keyword outside the class with the function definition to hide implementation details. So inline function जब प्रोग्राम छोटा होता है उसके कोड को हम लोग कॉपी कर देते हैं, that time we use inline function, और ये लूपिंग में और रिकर्सन में नहीं यूज होता है। These are some key points, इनको मैं पढ़ देती हूँ। It's just a suggestion, not a compulsion. आप यूज भी कर सकते हो, नहीं भी यूज कर सकते हो। Inline works like a copy-paste controller by the compiler, which quite different from preprocessor macros. All the member function is declared and defined within class are inline by default, so no need to define explicitly. आप नहीं भी डिफाइन कीजिएगा तो वो एज अ इनलाइन ही ट्रीटेड होता है, और इनलाइन आप डिफाइन कर दीजिएगा तो उसके कोड को कॉपी कर लेता है। These are some points. एक छोटा सा प्रोग्राम देखिए, हाउ टू यूज इनलाइन। हम लोग यहाँ पर लिखे हैं इनलाइन int is the return type, sqr is the name of the function, int x, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने लूप बॉडी लिखा है int y सेमीकोलोन, y में x का स्क्वायर प्रिंट स्टोर करना है तो लिखे हैं y इक्वल टू x इंटू एक्स, रिटर्न y, मतलब ये इसका स्क्वायर जो है वो y में स्टोर हो गया है और उसको हम लोग रिटर्न कर रहे हैं y से। फिर उसके बाद मेन लिखे हैं, मेन के अंदर लिखे हैं इंट a इक्वल टू 3, एक 3 का हमें स्क्वायर पास करना, अगर हम सीन नहीं किए हैं तो एक कांस्टेंट ले लिए हैं 3 और एक b लिए हैं। b में जो भी sqr फंक्शन में जाएगा उसको हम स्टोर कर रहे हैं, तो sqr फंक्शन में 3 गया, 3 ऊपर इनलाइन फंक्शन में गया जो कि 3 का स्क्वायर प्रिंट करके रिटर्न किया sqr नाम के एक मेथड में, तो sqr में जो रिटर्न किया वो हमने b में स्टोर किया, और सी आउट ans is b, आंसर इज b, रिटर्न, क्योंकि इंट में लिखा है दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट रिटर्न 0, सो आउटपुट विल बी आंसर इज 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है। सो दिस इज द सिंपल प्रोग्राम हाउ वी यूज इनलाइन फंक्शन इन C++. That's all from today's lecture. Thank you. Bye bye.